The big story that we are tracking right now, Central Investigation Agency NIA, which is probing the Pahalgam terror attack, has prepared a preliminary investigation report under the leadership of the NIA DG. Now, the investigation report has found evidence of a conspiracy by Pakistani terrorist organization, the Lashkar-e-Taiba, the ISI, as well as the Pakistan Army. Initial investigation reports mentions two terrorists involved in the attack, Hashmi Musa as well as Ali Bhai alias Telabai. Now, Hashim Musa and Telabai are Pakistani citizens. The report suggests that the terrorists were in contact with Pakistani handlers and were getting instructions from Pakistan. The conspiracy was hatched at Lashkar's headquarters at the behest of the ISI, is what the report states. Investigations revealed that the terrorists had hidden weapons in the Betab Valley. There is mention of overground workers in preliminary investigation report and their role in the terror attack. NIA has prepared a list of contacts of overground workers. Preparations are also being made for administrative and judicial actions against the overground workers. NIA has recorded statements of about 150 people in the preliminary investigation report. Initial reports of 3D mapping and recreation are also part of their preliminary investigation report. Empty cartridges found from the spot have been sent to the FSL, whose report is yet to come. There is mention of POK in NIA's preliminary investigation report. The terrorists were hiding with their handlers in Pak-occupied Kashmir. NIA DG will submit the preliminary investigation report to the Home Ministry. The preliminary report, in fact, points fingers at Pakistani military as well as its establishment, which says that the military was well aware of the plan being hatched by the Lashkar-e-Taiba at its headquarters, and they knew very well as to the nature of the attack that is going to be, and the Pakistani military was hand in gloves with the plans of the Lashkar-e-Taiba. The NIA's investigation also has been able to identify the terrorists. Two of them are Pakistani nationals, is what we understand. Now, initial investigation report mentions these two terrorists. They've been identified as Hashmi Musa and Ali Bhai. Now, the long-awaited Shahpur Kandi Dam project on the river, Ravi River in Pathankot, Punjab's border district with Jammu and Kashmir, has entered its final phase. Now, construction is now progressing at a rapid pace with the goal of completion in sight. Once operational, it will help India utilize the rightful share of Ravi waters under the Indus Water Treaty, effectively stopping excess river water from flowing into Pakistan. पाकिस्तान का जल्द ही हुक्का पानी अब बंद होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ रावी नदी का पानी जो जाता था वो अब जल्द ही बंद होने जा रहा है, क्योंकि शाहपुर कंडी डैम का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के आखिरी तक ये काम जो है वो पूरा कर दिया जाएगा, जिससे साफ तौर पे रावी नदी का पानी जो पाकिस्तान की तरफ जाता था वो अब बंद हो जाएगा। रावी नदी से लगभग पाकिस्तान को सालाना 8,000 करोड़ का फ़ायदा होता था। वहीं अब इस डैम के ऊपर जो फ़ायदा है वो भारत के लोगों को मिलेगा और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोगों को मिलने जा रहा है। शाहपुर कंडी बैराज के बनने से 5,000 हेक्टेयर ज़मीन में जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा, तो वहीं 32,173 हेक्टेयर ज़मीन पर पंजाब के लोगों को फ़ायदा मिलने जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि शाहपुर कंडी बैराज का काम जो है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा और युद्ध स्तर पर जो काम है वो चल रहा है। और वहीं रावी नदी का पानी जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था उससे पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अब वाटर स्ट्राइक जो है वो होने जा रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। Specialized training is being provided to students in the zero-line LOC area regarding safety measures. The training includes instructions on how to protect themselves should war break out between the two nations, including techniques of shielding against artillery fire. ये पहल किस तरह शुरू किया गया, आपको क्यों लगता है ये अहम था, बहुत अहम था?
कौन सा ये जो आज का हाँ, बच्चों को, हाँ। बच्चों के लिए, क्योंकि असल में जो ये आपने प्रोग्राम शुरू किया हम भी चाहते थे कि आप आने चाहिए। एक बॉर्डर का इलाका है, हाँ। जब शेलिंग होती है तो जगह जगह होती पे पड़ती है, और बच्चों का मसला खासकर गांव का जो सरमाया पूरा है वो जमा स्कूल में होता है। हाँ। मेन मुद्दा जो है बिल्कुल। कि पूरे गांव का सरमाया स्कूल में है। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ बैंकर का होना ज़रूरी है। और क्योंकि ये पूरा गाँव- स्कूल जो है ये काफी ऊंचाई पर है और सामने सीधे पीओके का इलाका हाँ, है ना। सीधा पीओ के वो सामने है, हाँ। बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ। तो वहाँ की गोली भी यहाँ पहुँची, गोले की तो गोली बात भी ही नहीं। पहुँची हाँ, गोली भी पहुँची। अब बच्चे कुछ सीख रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि क्या हम करना है। समझा रहे हैं कि डरना नहीं, अगर ऐसे हालात हो जाए तो डरना नहीं, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं ज़्यादातर डर जाते हैं और डर की वजह से भी जान ये बोलो गवा मुझे, देते हैं। प्रशासन की तरफ से या फौज की तरफ से बताया गया कि बंकर्स को सही करो, हाँ, उनकी अपने तरफ से- बच्चों को हाँ, सिखाओ, क्या हाँ, बताया फौज की गया? तरफ से भी ये बताया गया कि अपने बच्चों को भी सिखाओ, और बैंकर की का भी बोला कि बंकर की सफाई करके तैयारी में रखो, क्योंकि तैयारियां हो अभी रही हैं। तैयारियां करके कुछ रखो। भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। Speaking, the Central Investigation Agency NIA, which is probing the Pahalgam terror attack, has prepared the preliminary investigation report under the leadership of the NIA DG. Now, the investigation report has found evidence of a conspiracy between Pakistani handlers, the ISI as well as the Lashkar, and that the plan was in fact hatched at the Lashkar HQ. Joined in by Jitendra Singh. Jitendra Singh, क्या है इस रिपोर्ट में? What are the important points in the investigation? जी बिल्कुल, देखिए कल खुद एनआईए डीजी जो थे वो पहलगाम में जो बैसन घाटी है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया था वहां पर पहुंचे, तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर मौजूद रहे और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एनआईए ने मामले की तफ्तीश की है वो पूरी ब्रीफिंग एनआईए डीजी को स्पॉट पर ही दी गई। जो शुरुआती रिपोर्ट तैयार की गई है उस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा ने तीनों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी हैच की और उसके बाद इसको बैसन घाटी के अंदर अंजाम दिया गया। साथ ही जो ये प्रारंभिक रिपोर्ट है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से बाकायदा आतंकियों को ओजीडब्ल्यू जो कि ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन्होंने मदद की थी, बाकायदा उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाया था। इसके अलावा इससे पहले 3 और लोकेशन थी जहां पर बाकायदा रेकी भी की गई थी। अब तक तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए और उसी के आधार पर यह शुरुआती रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। साथ ही अभी भी खुद एनआईए डीजी श्रीनगर के अंदर मौजूद है और लगातार जो तमाम अधिकारी जो इस जांच में जुटे हुए हैं उनसे इस मामले में ब्रीफिंग ले रहे हैं। जी Sharma ji, you have also spoken about the conspiracy angle, Lashkar, Pakistani army, as well as the handlers hai. So the NIA seems to have got a link that connects Pakistani elements, isn't it? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश में ये पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से पूरी साजिश रची गई थी। जिस तरीके से जो फॉरेन टेररिस्ट हैं जिनमें से 2 के नाम सामने आ चुके हैं, हासिम मूसा और इसके अलावा तलहा भाई, ये दोनों दरअसल पाकिस्तानी आतंकी हैं, दोनों लश्कर के कमांडर हैं। इनकी भूमिका सामने आई है। जो चश्मदीद उस वक्त मौके पर मौजूद थे उन्होंने बाकायदा इनको पहचाना है, इनकी तस्वीरों को पहचाना है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो भूमिका है सीधे तौर पर एस्टेब्लिश हुई। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे थे, जैसे कि सामने भी आया कि उनके सिग्नल बाकायदा ट्रेस किए गए घाटी के अंदर। ये इक्विपमेंट जो है वो जो पाकिस्तानी सेना है उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, आईएसआई के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आखिरकार ये जो आतंकी थे, जो फॉरेन टेररिस्ट थे, इनके पास इस तरीके के इक्विपमेंट होना कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, तो ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को साफ दर्शाता है इस पूरे हमले के अंदर। इसके अलावा लगातार ये लोग पाकिस्तान में अपने लश्कर का जो हेडक्वार्टर है इनका पीओके में, वहां पर संपर्क में भी थे। तो ये वो तमाम फाइंडिंग्स हैं जो शुरुआती तफ्तीश के अंदर बाकायदा दर्ज की गई है, लिखी गई हैं। लेकिन अभी भी जो सदानंद दाते हैं एनआईए के डीजी, वो इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं। कश्मीर में उन्होंने कैंप किया हुआ है कल से और लगातार जो अधिकारी हैं उनसे आगे की जो तफ्तीश यानी कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे अब क्या होगा उस पर लगातार मीटिंग चल रही है।